So our next chapter is statistics. Okay. So what is statistics? Basically, statistics is the science of data, science of organizing, arranging, analyzing, and understanding data. So data is basically information which can be given you in the form of words, sentences, paragraphs, or it can be given you in terms of numbers. So when the data is given to you in the form of numbers, there is a method to organize that data. And this particular method, or the science which deals with the method of organizing data, is statistics. Okay. Now, there are certain things which we are going to deal in statistics. First is the type of data. Okay, the thing which we'll focus on here is these types of data which are given over here. The first thing is raw data. Raw data is something which you have always studied in class, earlier classes, that is class 6th, 7th and 8th. You have studied about raw data. The data which is obtained in original form is called raw data, ungrouped data. For example, in your class, if there is a test conducted out of 50 marks and there are 30 students in your class, then the marks obtained by each of the students, if they are written roll number wise, then they'll look something like this. 28, for example, okay? 33, 34, 37, 25, 19, 8, 49, 36, 25, 35, 48, 45 and so on for 25 students. So ये जो data तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, that is raw data. Raw is unarranged, ungrouped data. You can always group this data, but before grouping, you make it into an array. Array means the data which is arranged in ascending or descending order is called arrayed data. Okay? And after arraying the data, if the you can say range of the data is too large, then you have the choice of grouping the data. Okay? So data, when it is tabulated or arranged in the form of a table, it can be either arranged in the form of grouped data, or you can keep it ungrouped data. Ungrouped data in tabular form is preferred when the range is small. And group data is preferred when the range of data is large. But what is range? Range is the difference between the highest observation and the lowest observation. जैसे तुम्हारे क्लास में अगर टेस्ट होती है आउट ऑफ लेट्स से 100 मार्क्स, तो किसी बच्चे को 0 भी आ सकता है, किसी बच्चे को 100 भी आ सकता है. तो रेंज कितनी हुई? रेंज हो गई 100 minus 0, that is highest observation minus lowest observation, that is 100. तो range is large. 100 is a very large number for the data. लेकिन अगर सपोज तुम्हारे बिल्डिंग में जितने भी फैमिलीज हैं, जितने भी फ्लैट्स है उसमें जितने भी फैमिलीज है उसमें कितने बच्चे हैं, अगर उसका तुम डेटा बना रहे हो, तो किसी के घर पे 3 बच्चे होंगे, किसी के घर पे 2 बच्चे, किसी के घर पे 1 बच्चा, किसी के घर पे 0 बच्चे, एक भी बच्चा नहीं होगा, किसी के घर पे 5 किड्स होंगे. मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 0 है. तो रेंज कितनी हुई? 5 minus 0, 5, विच इज अ फेयरली स्मॉल नंबर. तो जब रेंज स्मॉल होती है तो हम अनग्रुप डेटा प्रेफर करते हैं, और रेंज जब लार्ज होती है तो हम ग्रुप डेटा बनाते हैं. तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि ग्रुप डेटा बनाते कैसे. सो ग्रुप डेटा इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल्स. जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100.
This is a data with fairly large range. ठीक है, इसमें रेंज लार्ज है. क्यों? क्योंकि मार्क्स कोड आउट ऑफ 100 हैज अ रेंज ऑफ 100, मतलब 0 से 100 तक कोई भी डेटा हो सकता है. तो अगर मैं इसका टैबुलेटेड डेटा बनाऊंगा तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट कॉलम में, और उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बच्चों को इतने मार्क्स आए. तो जस्ट इमेजिन मैं ऐसे लिखता जाऊं 1 2 3 4 5, तो आई हैव टू गो अप टू 100, क्योंकि 100 मार्क्स को मुझे नोट करना है, क्योंकि कितने बच्चे को कितने मार्क्स मिले. I have to segregate on the basis of the marks they are scoring, and there are 100 marks. So if I write all the marks separately when the range is large, I will get a very big table which will not even fit in one page. So in this case, when the range is large, I will make a grouped frequency distribution table, or I will create group data. So what I'll do, I will write it like this: 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50, not 450, 40 to 50 and so on. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स आए, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों को आए, एंड सो ऑन. सो दिस इज ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा कब प्रेफर करते हैं हम लोग? जब रेंज बहुत बड़ी होती है. बट ऑन द अदर हैंड, marks, sorry, not marks, sorry for that. On the other hand, if I take an example of number of children in a family of a locality or a building, तो यहां पे क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उसके बाद वाले कॉलम में क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी. तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि किसी भी बिल्डिंग में अगर तुम नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डेटा निकालोगे तो मिनिमम 0 चिल्ड्रन होंगे, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5. मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है वो लिमिटेड है, रेंज छोटी है. एंड देन यू कैन से कि कितने घर पे 0 बच्चे हैं, कितने में 2 है, कितने में 5 है, जो भी है. ठीक है. सो दीज 2 आर द 2 टाइप्स ऑफ frequency distribution table. The first one which I showed you here is grouped frequency distribution table, and this one is ungrouped frequency distribution table. You have to see the data and then decide which type of frequency distribution table you have to make. In most of the questions they will tell you, वो लोग आपको बताएंगे कि आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है या अनग्रुप. अच्छा, ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, दीज आर नोन एज क्लास इंटरवल्स. ये सारे क्लास इंटरवल्स हैं. ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है खास करके. फिर उसमें ये जो 0 है ये लोअर लिमिट है, 10 है अपर लिमिट है. तो उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से समझेंगे. ठीक है, जैसे कि अच्छा टैली मार्क्स भी होता है. टैली मार्क्स का हम लोग यूज करते हैं टू नोट डाउन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अकरिंग इन अ सर्टेन ग्रुप्स. ठीक है, उससे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे यहाँ पे this data gives number of children in 15 families of a locality. अब भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब रेंज छोटी है तो हम क्या करते हैं? वी मेक अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा में जो क्लास इंटरवल से वो नहीं होते, वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. देखो यहाँ पे रेंज छोटी है, मिनिमम नंबर कितना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली 1, मैक्सिमम कितना है? 5. ठीक है, सो मिनिमम 1, मैक्सिमम 5, रेंज कितनी हो गई? 4. 5 - 1 4. तो हमने कैसे बनाया? यहाँ पे देखो, ये दिस इज हाउ यू मेक इट. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अनग्रुप डेटा है 1 2 3 4 5. टैली मार्क्स. अब टैली मार्क्स क्या है? सबसे पहले मैंने ये जो रॉ डेटा है ना, रॉ डेटा मतलब अनअरेंज डेटा है, बिल्कुल अनअरेंज, उसको अरे में कन्वर्ट किया. अरे मतलब आई हैव कन्वर्टेड इनटू असेंडिंग ऑर्डर.
ठीक है, तो 1 कितनी बार आता है क्लियरली समझ में आता है, 1 2 3 4 5। कैसे लिखा मैंने 5? टैली मार्क्स है, 1 2 3 4, 4 वर्टिकल लाइन्स एंड 1 डायगोनल लाइन फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर। तो ये हो गया 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। मतलब ऐसी 5 फैमिलीज है जिसमें सिर्फ 1 चाइल्ड है, फिर ऐसी 4 फैमिलीज है जिसमें 2 चिल्ड्रन है। ऐसे करके मैंने ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बट ये कौन से टाइप का है? अनग्रुप्ड। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लो। यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन नोट इट डाउन, और टेबल भी तुम बना सकते हो। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें तुम्हें सबसे पहले तो ये मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। ठीक है, तो अभी इसमें देखो रेंज फेयरली लार्ज है। सबसे छोटा नंबर है 3, सबसे कम मार्क्स आए 3, और सबसे ज्यादा मार्क्स आए 45 आउट ऑफ 50। तो रेंज है 42 की, विच इज फेयरली लार्ज। मतलब इसको मुझे ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन ग्रुप डेटा के फॉर्म में अरेंज करने से पहले आई हैव टू मेक एन अरे आउट ऑफ इट। अरे मतलब आई हैव टू अरेंज ऑल दिस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी रॉ डेटा दिया है तो उसको पहले अरे में कन्वर्ट करो and then write or draw or make the grouped or ungrouped frequency distribution table using tally mark. ठीक है, so please pause the video here and convert it into an array. Done? Arranged it? Okay. Check your answer with this arrangement. एटीन 2 टाइम्स है, 22 2 टाइम्स है, 23 एक ही बार है, 38 2 टाइम्स है। करेक्ट है? ओके, नाउ this is your raw data, this is your arrayed data. From arrayed data we have to make a grouped frequency distribution table. ठीक है, but there are two forms which are given over here: exclusive form and inclusive form. Exclusive form and inclusive form. So I'm going to teach both the forms to you. बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव फॉर्म। कीप द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, जो तुमने अरेड डेटा बनाया है, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। सो द फर्स्ट कॉलम ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इंक्लूसिव टाइप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इज द क्लास इंटरवल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्लास इंटरवल। दिस इज द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके बाद आएगा टैली मार्क्स, और इसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल में हम क्या लिखने वाले हैं। सो एज यू नो कि ये जो डेटा है हमारे पास, दीज आर द मार्क्स ऑफ 25 चिल्ड्रन आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 किसी को 0 मार्क्स भी आ सकता है, किसी को 50 भी आ सकता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट 0 और 50 के बीच में कुछ भी स्कोर कर सकता है, एंड वी हैव टू अरेंज दोज मार्क्स इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस। तो जो क्लास मैं सिलेक्ट करने वाला हूं दैट इज दिस 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, and 45 to 50.
या सो दैट इज इंक्लूसिव टाइप. मैं वही अभी डिफरेंस बताता हूं तुमको. ठीक है. कैन यू ड्रॉ दिस टेबल इन योर बुक? हेलो, पेंसिल स्केल यूज नहीं करना, पेन से रफ फास्ट. ठीक है. वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. मैंने जैसे रफ बनाया तुम भी बनाओ, सिर्फ वो समझना चाहिए. Now I'm going to talk more about this table. First, I will write the name of this table. This table is known as exclusive, not inclusive, exclusive or continuous type grouped frequency distribution table. This is the name of this table, and I'll tell you why exactly it is known as this. Exclusive or continuous type grouped frequency distribution table. Just let me know when you're done. ठीक है. We started with 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and so on up to 50. इतना लिखा आपने? ठीक है. अब ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो तो समझ जाओगे तुम. In this table, exclusive type or continuous type group frequency distribution table, you will notice one thing. You see this number? This is exactly equal to this number. You see this number? It is exactly equal to this number. Okay. Somebody. So, this 5 which you see over here, it is the upper limit. इसको क्या बोलते हैं? Upper limit. और ये 0 जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं lower limit. ये 5 क्या है? Lower limit of the second class. ये 10 क्या है? Upper limit of the second class. ये 10 क्या है? Lower limit of the third class. 15 upper limit of the. हाँ, तो ये upper and lower limit का सीन है इसमें. Now, if you see a relation over here, the upper limit of the first class is equal to the lower limit of the next class. Upper limit, lower limit, upper limit, lower limit. ये continuous एक relation है, दिख रहा है तुम्हें? एक continuity है. इसके लिए इसको continuous type group frequency distribution table भी बोलते हैं. अच्छा, इसको exclusive क्यों बोलते हैं? Do you know the meaning of the word exclusive? Exclusive तुमने बहुत बार सुना है. ये exclusive. Very good. Exclusive means some things are excluded. Only selected things are there. So इसमें exclude क्या किया है? The upper limit is excluded. So in the first class interval, what you have to exclude? 5. Where will you include 5? In the next class interval. So in the first class interval, which numbers are included? 0, 1, 2, 3 and 4. How many numbers are there? 5. 0, 1, 2, 3 and 4. क्योंकि तुम 0 भी काउंट कर रहे हो. तो how many numbers are there in the first class interval? 5. ठीक है. In the second class interval, 10 is not included. 10 is excluded. And it is included in the third class. So how many numbers are there in the second class interval? 5, 6, 7, 8 and 9. How many are there? 5. So every class interval has got 5 numbers, 5 marks, 5 observations together. But the way we are writing the class intervals, there is a continuity maintained. क्या हम लोग कर रहे हैं? There is, we are maintaining a continuity. Since we are maintaining the continuity, क्या हो रहा है? What is happening?
Since we are maintaining the continuity, we have to exclude the upper limit from all the classes. अब तुम्हारे सामने वो arrayed data है क्या? उसमें पहला नंबर कौन सा है? 3. तो 3 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? 0 to 5 के बीच में आएगा. तो मैं यहां पे एक टैली मार्क डाल देता हूं. नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 कहां पे आएगा? फर्स्ट क्लास इंटरवल में और एक टैली मार्क. फिर 7 आएगा सेकंड में, बोलते जाओ. 9 आएगा सेकंड में. 11 आएगा थर्ड में. 13 1 3. 12 आएगा थर्ड में. 13 आएगा थर्ड में. 16 आएगा फोर्थ में. 17 आएगा फोर्थ में. 18 आएगा फोर्थ में. 18 फिर से आएगा. 19 फिर से आएगा, तो मैं क्रॉस कर देता हूं. 20 आएगा फिफ्थ में, क्योंकि 20 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फोर्थ क्लास इंटरवल. अभी समझ में आया तुम्हें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं? क्योंकि यहां पे गड़बड़ करोगे तो पूरा टेबल ही गलत हो जाएगा. सो 20 विल बी इंक्लूडेड इन द 1 2 3 4 and 5th class interval. Next number 22 will be in 5th. 22 again in the 5th. 23 in the 5th. 24 in the 5th. 28th in the 6th. 31 in the 7th. In the 7th. 30 directly. 38 will be in the 8th. 38 again in the 8th. 39th also in 8th. 42 in 9th. 45 will be in the 10th one. That's it. So मैंने क्या किया? मैंने arrayed data की help से tally marks डाल दिया. Now according to the tally marks, I'll give the number to the frequency. So frequency will be 2, 2, Sir, 3. Yes. sir, there is 32 also. There is 32 also. We have not taken Yes. that. No, sir. We have taken. They are saying we have taken it. अच्छा, हम लोग पहले लिख देते हैं, फिर कोई गलती आए तो फिर से देख लेंगे एक बार. ठीक है, रीचेक कर लेंगे. Okay, sir. So 3 5 5 1 2 3 1 1. अब इसको चेक कैसे करते हैं? यू हैव, हाँ, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है. वी शुड गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये मार्क्स किसके हैं? स्टूडेंट्स के हैं. These all the marks belong to the students. So each mark scored by a student is the observation. So if you add 2 plus 2, 4 plus 3, 7 plus 5, 12 plus 5, 17 plus 1, 18 plus 2, 20, 23, 24, 25. It exactly gives you 25. This is sum of all the frequencies. That means your exclusive or continuous type group frequency distribution table is absolutely perfect. समझ में आया? अच्छा, अभी कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर ये जो क्लास इंटरवल आपने लिए है ना, 0 to 5, 5 to 10, मुझे ऐसा नहीं लेना है. मुझे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 लेना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक लाइक दैट. ठीक है, इसमें डेटा थोड़ा और इलैबोरेट हो गया है, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव हो गया है. तुम लोग वैसे अगर और कंडेंस करोगे क्लास को, मतलब क्लास जो विड्थ है वो बढ़ा दोगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लास इंटरवल. सबसे पहले अगर एक मैं क्लास इंटरवल ले लेता हूं इसमें से ही, जैसे कि यहीं पे जो दिख रहा है वही लेते हैं. लेट मी टेक दिस वन. जो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू दिस क्वेश्चन. दिस इज, आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड मेनी टाइम्स इन दिस होल चैप्टर. ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस क्लास इंटरवल. ठीक है, सबसे पहले 30 to 35, ये क्या है? दिस इज अ क्लास इंटरवल. ठीक है, व्हाट इज 30? वेरी गुड, लोअर लिमिट. व्हाट इज 35? अपर लिमिट. ठीक है, इतना टर्मिनोलॉजी तो तुम्हें पता है ना, इसकी डेफिनेशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो देख के ही समझ में आना चाहिए. आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू टर्मिनोलॉजी, a new term which is
क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट क्या है 30 टू 35 की? 35। लोअर लिमिट क्या है? सो क्लास साइज कितनी हो गई? हमने जब काउंट किया था हमको क्या नंबर आ रहा था? 5। यू रिमेंबर? काउंट किया था तभी हर एक क्लास में कितने एलिमेंट होते हैं? तो 5। कैसे पता चला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? क्लास साइज या क्लास विड्थ। दोनों टर्म से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फाइंड द क्लास साइज। और एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं इसमें कि whenever they will ask you to find the class size or class width, you should make sure that your class intervals are of continuous or exclusive type, जो हमने अभी किया। तुम नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव टाइप में क्लास विड्थ ऐसे नहीं निकाल सकते। फर्स्ट यू नीड हैव टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव or non-continuous type class interval into continuous type and then find the class intervals. Remember that. If you don't remember that and if you find the class interval in non-continuous type in the class width, it will be wrong. I will show you why. I will show you why. But remember, this formula is applicable only for exclusive type of group frequency distribution table. Only for exclusive type. Are you writing this? You are not writing, you're looking here. You have to do multitasking. You have to look here, understand, write, remember. 4-5 चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। मैं वीडियो तो ले रहा हूं, लेकिन दो दो काम क्यों करोगे? घर पे जाओगे, वीडियो भी देखोगे, ये भी देखोगे, साथ में लिखो, नोट्स लेते रहो। ठीक है, ये हो गया क्लास साइज। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, और एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब मिड पॉइंट, एक क्लास का मिड पॉइंट। ठीक है, सो क्लास मार्क का फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें। क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज 35 प्लस 30 by 2, which is 65 by 2, which is, can you tell me how much? 32.5. तो ये क्या है? What is this class mark? This is the midpoint of a class, mid value. मतलब 30 और 35 में exactly बीच में कौन है? 32.5. This is the mid value of a class. तुम बोलोगे सर इसका क्या यूज है? तो इसका यूज आगे तुम्हें समझ में आएगा जब हम लोग मोड, सॉरी, मीन मीडियन मोड करेंगे। मीन मीडियन मोड तुम्हारी जो बुक में है दैट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 10th क्लास में जो मीन मीडियन मोड है, in that you will have the use of this class mark as well. ठीक है, तो that is mean and median using group data, so you will find the use over there. Here also in class 9th we'll find some uses, but that we'll see. That's, we are not in a hurry. First we have to understand these all things. ठीक है, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन से समझ में आ गई। क्लास इंटरवल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाते हैं क्लास इंटरवल, टैली मार्क कैसे अप्लाई करते हैं, अरे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, पॉज द, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। So we are done with exclusive type of class interval. Now inclusive. Again I would want you to keep the arrayed data in front of you. So इसका भी नाम वही है, इंक्लूसिव टाइप ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इंक्लूसिव टाइप।
इसमें भी सबसे पहले आता है क्लास इंटरवल. व्हेन आई राइट CI, इट्स नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इट इज क्लास इंटरवल. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. क्लास इंटरवल, tally marks and frequency, F for frequency. So in inclusive type, the word inclusive itself, inclusive or discontinuous itself means that the upper and lower limits both are included in the same class interval. So if I write 0 to 5, then I have to write 6 to 10, and then I have to write 11 to 15, and so on. So let's finish it. 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, and 46 to 50. So the idea is, in inclusive type of class intervals, both the upper and lower limits are included in the class interval. मतलब जब तुम टैली मार्क्स बनाओगे तो अब तुम्हें वो कंफ्यूजन होगा कि 5 को डालना कहाँ है. नहीं होना चाहिए, बिकॉज 5 तुम्हें कहीं और दिखेगा नहीं. 5 सिर्फ फर्स्ट क्लास इंटरवल में, तो 5 वहीं पे आएगा. सो कैन यू टेल मी द नंबर सो आई कैन क्विकली मार्क द टैली मार्क्स? 4, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19, 20. ओके, एक गलती हो गई है. एक मिनट 18, 19, 20. 20 के बाद एक मिनट कुछ तो गड़बड़ किया है. 16 से बाद फिर से बोल मुझे. यस, अब सही है. 22, 23, 24, 28, 39, 42, 45. ओके, सो 46 और 50 के बीच में कुछ भी नहीं है. सो 2, 2, 3, 6, 4, 1, 2, 3, 2. Can you tell me the total? 2, 2, 4, 7, 13, 17, 18, 20, 3, 25. Perfect. Now as you see, tally marks and frequency are different than the exclusive type. ठीक है, यहां भी ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, लेकिन हम क्लास विड्थ इससे नहीं निकाल सकते. नीदर वी कैन फाइंड द क्लास मार्क. क्लास विड्थ और क्लास मार्क निकालना है तो विच काइंड ऑफ क्लास इंटरवल्स? एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव में नहीं हो सकता है वो. अभी क्लियर हो गया क्लास इंटरवल्स के टाइप्स? मैं बताता हूं, अभी कन्वर्जन के ऊपर भी हम बात करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू अनदर टाइप. ठीक है, ये तो हो गया. See, they have taken the intervals as 0 to 10, 10 to 20. This also is possible, not a problem. And here they have taken 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, and so on. Okay, this is a good question. Can you see it? Visible? The class marks of distribution are as given over here. Find the class size, limits, and true class limits. Class mark क्या होता है? अभी मैंने बताया था. The mid value. These are all the mid values. ठीक है, सबसे पहले हाउ टू फाइंड द क्लास साइज यूजिंग द कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज. क्लास साइज
इसका दूसरा नाम क्या है? क्लास विड्थ। और इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इसका फॉर्मूला है। वो तुम जो बोल रहे हो क्लास मार्क का फॉर्मूला है। वी डोंट हैव अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, वी हैव टू और मोर or all class marks. So this is also equal to, class size is also equal to difference of two consecutive class marks. Difference of two consecutive class mark. Consecutive का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक जो आता है, ठीक है। सो एनी टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स, कैन यू टेल मी? जैसे 57 और 52, हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। सो लेट्स से 57 माइनस 52 क्या आएगा? दिस इज द क्लास साइज। दिस इज द क्लास साइज। समझ में आया क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज या तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, या तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स होता है। कोई बोलेगा सर हमको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 67 72 75 कैसे आएगा? यहाँ पे 77 आएगा। दिस इज रॉन्ग। कोई भी 5 वाला नंबर ही नहीं है यहाँ पे। यू सी 37 42 47 52 57 62 67 72 फिर 77 82, this should be 77, this is not 75. So any two consecutive class marks you take and subtract it, you will get class size. You got the class size. How you can find the limits? Now for limits you have to take the class size and divide it by 2. ठीक है? So you will take the class size divided by 2. What you will get? 2.5. This 2.5 you will add and subtract from your class mark to get the lower and upper limit of that particular class. जैसे हमारा क्लास मार्क है 37, क्या है क्लास मार्क पहला? 37, ठीक है। सो 37 किसका मिड वैल्यू है वो हमें निकालना है। सो व्हाट विल डू इज 37 minus 2.5, can you tell me what is it? 34.5, 34.5. And I will do 37 plus 2.5. Can you tell me what is it? So 34.5 to 39.5 is the first class interval, right? Limits का मतलब क्या है? Upper limit and lower limit. This is lower limit, this is upper limit. So you will write class intervals और उधर लिखोगे 34.5 to 39.5. You can. No, you cannot. It is starting from 34.5. ठीक है? अच्छा, 42. Can you tell me how to find the upper and lower limits of class interval with the class mark 42? Can you tell me how much will it be? 39.5 and 42 plus 2.5. Can you tell me? So what is the next class interval? 39.5 to 44.5. वैसे ही next क्या होगा? 44.5 to 49.5. 5 ऐड कर दो ना, क्लास साइज कितनी है? तो you just have to add 5 to lower limit to get the upper limit. Next class will start from 2 54.5, 54.5 to, and you can complete it. So what are all these? These are all the limits. Limits मतलब upper and lower limits, all the class intervals. मिल गया? तो हमने पहले क्या ढूंढा? क्लास साइज ढूंढा मिड पॉइंट से, फिर लिमिट्स ढूंढा। अब क्या बोलेंगे? अब क्या ढूंढेंगे? ट्रू क्लास लिमिट्स। सो व्हाट आर दिस ट्रू क्लास लिमिट्स? इसका डेफिनेशन मैं तुम्हें दिखाता हूं। थियरी में इसका डेफिनेशन लिखा है।
ओके, यहाँ पे नहीं लिखा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया सारा क्लास मार्क, क्लास लिमिट्स। ये जो हमने बनाया उसी तरीके से पूरा कंप्लीटेड टेबल है। Since the class intervals, since the classes are exclusive, true class limits are the same as class limits. So now you know what is true class limits. True class limits are the upper and lower limits of the class intervals which are of exclusive type. अगर तुम्हारे क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है तो उनकी ही अपर और लोअर लिमिट क्या होती है? ट्रू क्लास लिमिट्स. If the class intervals are not inclusive, then you have to convert it into inclusive and then you will find true class limits. But here the already whatever we have got here, the class intervals are of which type? Continuous type, exclusive type. Therefore these class limits are also the true class limits. समझ में आया? तो तुम्हारी जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें और दो चीज ऐड होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एंड की थी, उसकी पहले क्या, आई थिंक, हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था तुम्हें क्लास साइज, क्लास विड्थ, या फिर और क्लास मार्क। और इसमें और एक चीज तुम ऐड करके लिख सकते हो, ट्रू क्लास लिमिट्स आर द क्लास लिमिट्स ऑफ exclusive or continuous type of class interval. एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स की जो लिमिट्स है उसको हम लोग ट्रू क्लास लिमिट्स बोलते हैं. सो लेट मी let me ask you, are these the true class limits? Are these the true class limits over here? Yes. Why? Because this is exclusive type of class intervals. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे क्लास साइज निकाला क्लास मार्क से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फॉरगेट दिस, इट विल गिव यू ट्रबल. और तुम्हारी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस है. इसमें पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी द फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट एंड सेकेंड. पहले दो क्लास इंटरवल बताओ. जो लोग ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं. किसी की आवाज नहीं आ रही है. Why? 144. किसी और को उससे लोअर नंबर दिख रहा है क्या? 114 is the lowest. And what is the highest? 212. Correct. 212. So the class interval suggested. अच्छा, यहां पे बोला है क्लास साइज 10 होनी चाहिए. क्लास साइज कितनी होनी चाहिए? 10. So what is the class interval you are suggesting, Bhargav? 110 to 11. Sorry, 120. Next class interval will be 120 to 130, 130 to 140 and so on. फिर क्या करोगे तुम? इसको अरे बनाओगे? बनाने की जरूरत नहीं है. सीधा 184 लिया, उसको क्रॉस किया और फिर जहां पे टैली मार्क आती है वहां पे डाल के उसको कंप्लीट कर दिया. इज इट इजी और नॉट? ठीक है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं. यस. क्लास साइज जब बोला है तो आई टोल्ड यू के क्लास साइज हम कब ढूंढते हैं? कौन से टाइप के क्लास इंटरवल में? एक्सक्लूसिव में. सो इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव. ओनली देन वी कैन वेरीफाई द क्लास साइज इज 10. ठीक है.
यहां पे ये लोग ने अलग क्लास इंटरवल लिए. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस विथ योर टेबल. अगर तुम 110 to 120 ले रहे हो, दैट मेक्स योर टेबल लिटिल डिफरेंट बट नॉट इनकरेक्ट. ठीक है, सो दे माइट टेक इट लिटिल डिफरेंटली, बट इफ दे हैव आस्क्ड क्लास साइज 10 है, दे विल नॉट टेल यू कि कहां से शुरू करना है तुम्हें. दे कैन नॉट टेल यू, सो यू कैन बिगिन इट फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट. ठीक है, सो योर टेबल कैन बी लिटिल डिफरेंट. Now let's do a question in which we have to convert. कन्वर्ट वाला क्वेश्चन आया ही नहीं इसमें. ठीक है, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं. एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पहले करते हैं. सो सपोज माय क्लास इंटरवल्स आर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, and 41 to 50. Can you tell me what kind of class intervals are these? Inclusive या फिर discontinuous. I have to convert it into exclusive type class intervals. So how do I do it? ठीक है, first thing, first step number 1, find the difference of lower limit of a class and upper limit of its preceding class. मतलब किसी एक क्लास की लोअर लिमिट और उसके प्रीसीडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीसीडिंग, उसके पहले वाले क्लास की अपर लिमिट का डिफरेंस निकालो. तो यहां पे एक लोअर लिमिट मुझे बता दो कोई भी, लेट्स से 21. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स प्रीसीडिंग क्लास? 11 to 20. एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ दैट प्रीसीडिंग क्लास? इन दोनों का डिफरेंस ढूंढना है. ठीक है, सो एग्जाम्पल में लिखता हूं मैं 21 minus 20 विच इज 1. डिफरेंस आ गया. अब नंबर 2, डिवाइड द डिफरेंस बाय 2. डिफरेंस को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है. तो 1/2, 1 डिफरेंस था ना, 2 से डिवाइड किया, कितना मिला? 0.5. ठीक है, थर्ड, add 0.5 to all lower limits and subtract 0.5 from all upper limits. सारे लोअर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो और सारे अपर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो. मैंने सही तो बोला है ना? नहीं, मैंने गलत बोला है. अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है. तो मैं LL और UL को ही मैं चेंज कर देता हूं. ठीक है, ऐड 0.5 टू ऑल अपर लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम ऑल लोअर लिमिट्स. सारे लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है. ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 है. व्हाट इज 1? लोअर लिमिट. तो उसमें से क्या करना है मुझे? 0.5 माइनस करना है. तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा? और 10 क्या है? अपर लिमिट. उसमें हाँ, ये क्या है? 11. लोअर लिमिट 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5 एंड 40.5 टू 50.5. अब देखो एक चीज नोट करो यहां पे,
Because I have found the true limits. What are these? These are the true limits. Why are these true limits? Because this is an exclusive type of class interval. Since I have found the true limits, I can find now the class width. What is the class width? Can anybody help me with this? Upper limit minus lower limit. That is 10.5 minus 0.5, which is 10. यहाँ पे करते तो क्या मिलता? जो गलत है, क्योंकि 1 to 10 में 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है, तो देयर आर 10 नंबर्स एंड हियर आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर. ठीक है. एंड आई कैन ऑल्सो फाइंड द क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. दैट इज 0.5 प्लस 10.5 11. 11 बाय 2 कितना होता है? 5.5. दैट इज द क्लास मार्क. ठीक है. प्लीज ये पूरा लिख लो इंफॉर्मेशन. हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स. कन्वर्जन. ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो वी कैन डील विद देम इजीली. कौन था ये बीच में? तुमने तो दूर से ही पहचान लिया है. लॉकडाउन में सेंसेस एकदम शार्प हो गई तुम्हारी यार. इस चैप्टर में ना ये सारी थियरी बहुत है, इस स्पेसिफिकली इस पार्ट में. सो इट्स लेंदी इन दिस वे. इट्स नॉट डिफिकल्ट बट लेंदी है. इंफॉर्मेशन बहुत सारी थियरी है टू कीप देम इन माइंड. इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ा सा बोरिंग, इसको पहले निपटा देते हैं, फिर वो एरिया और वो पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला कर लेंगे, फिर ज्योमेट्री आराम से करते रहेंगे. फिजिक्स भी करना है अपने को, केमिस्ट्री भी हो जाएगा. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिफोर योर प्रीलिम्स जितना हो सकता है. स्टेप्स याद रखना है इसमें, कैसे कन्वर्जन किया मैंने. डन. कूल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक. सब जो ये टाइप के क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें सिर्फ, हाँ ये एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, उसकी भी बात कर लेते हैं. So in an examination, the marks obtained by 35 students are given here. Form a cumulative frequency table with class intervals of length 50. यहां पे एक नई चीज तुम देख रहे हो, cumulative frequency table. This is a new thing. It's there in your book. So what is cumulative frequency? कैसे निकालते हैं इसको? Class interval बोला है of length 50. तो यहां पे वो लोग ने क्या किया है पता है? Out of all these, the minimum marks they have found out, and what I can see it is 154. 154 सबसे छोटा है, and the maximum marks which I can see is 440. Yes. So class interval की length मुझे 50 की लेनी है, तो 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 ऐसा करके क्लास इंटरवल बना दिया. कौन से टाइप का क्लास इंटरवल है ये?
एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस टाइप, टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. नाउ यू सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एग्जैक्टली मैं बताता हूं कैसे निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका यूज भी मैं तुम्हें बताऊंगा. इसका यूज क्लास 10th में हम लोग करेंगे यूज. क्लास 9th में इसका इमीडिएट यूज नहीं है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है तुम्हें याद रखनी है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहां जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं दैट इज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. I will tell you. I will tell you that. I will explain both the differences exactly. First, understand how to find less than type cumulative frequency. For that, you will take the frequency of the first class, write it as it is. Then you will add the frequency of the first class with the succeeding class and write the sum over here. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 6, 19. 19 plus 8, 27. 27 plus 7, 34 plus 1. How many students were they talking about? 35 students if you see here. So जो cumulative frequency में जो final frequency मिलती है ना तुम्हें, that is the total frequency. So this is used in drawing ogives, which you will learn in class 10th. Ogive is a curve which you draw with midpoint or class mark of a particular class interval and the cumulative frequency. So there are two types of ogive, less than type ogive and greater than type ogive. तुम लोग हमेशा 10th में जो यूज करोगे that is less than type ogive, and that ogive is used to find the median which we are going to learn in class 10th. तो ग्राफिकल वे से जब मीडियन ढूंढते हैं ना, उसमें ओजाइव ड्रॉ करना पड़ता है, और ओजाइव ड्रॉ करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन डिटेल इन दिस क्लास. तो लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप बनाते कैसे, उसमें डिफरेंस क्या है, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वी विल डू इट. अदरवाइज जस्ट रिमेंबर दिस टेक्निक फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी लेनी है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड क्लास. ऐसे करते करते यू विल गेट ऑल द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. सो दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर यू. Okay, this question is more interesting because यहां पे क्या बोला है वो लोगों ने, they have given you the cumulative frequency distribution table, you have to convert it into frequency distribution table. क्यूमुलेटिव से नॉर्मल बनाना है इसको. मैं बताता हूं कैसे. तो आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन विथ मी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. आई एम श्योर यू विल फॉरगेट. सो ये जो मार्क्स है ना, उसकी जगह पे पहले तुम लिखो क्लास इंटरवल्स, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्यूमुलेटिव है. ठीक है. दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहां पे तुम लिखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक कॉलम बना के यहां पे तुम लिखो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो मतलब तुम्हारे आंसर में 3 कॉलम होगी, क्लास इंटरवल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट डेटा यू सी ओवर हियर इन द कॉलम ऑफ मार्क्स? बिलो 45. मतलब कितने बच्चों को 45 से कम मार्क्स आए. तो मैं यहां पे लिखूंगा 0 to 45. मतलब क्या है, कितने बच्चे को 0 से 45 मार्क्स आए. किसी को नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आ सकते ना, 0 से ही मार्क्स शुरू होते हैं. सो मतलब मिनिमम मार्क्स कितने होंगे? 0 to 45. ठीक है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 0. अच्छा, कितने बच्चे को बिलो 60 मार्क्स आए? हाँ, तो बिलो 60 मतलब क्या है? 45 to 60. ठीक है. 10. उसके बाद क्या लिखेंगे? वेरी गुड, प्लीज कंप्लीट दिस. 75 to 90, 90 to 105,
105 to 120, 10 के बाद 25, 45, 96, 118। ठीक है, इतना लिख लिया। अच्छा, यहां पे तुम सोच रहे होगे कि सबकी जो क्लास विड्थ है दैट इज 15, ये पहले वाले की 0 to 45, इसकी 15 नहीं है, तो 15 कैसे बना सकते हैं इसको? यहां पे क्या कर देंगे? कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिलो 45 तो एक भी स्टूडेंट है नहीं। तो यू कैन राइट इट 30 to 45 टू मेक इट सिमेट्रिकल। यहां पे अगर कोई नंबर है तो 0 रख सकते हो तुम, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमारा मार्क्स जो हमें मिलेगा दैट इज ऑन कन्वर्टिंग दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर हमको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग लिख देंगे 0। ठीक है, अब 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इज 10, फिर 25 माइनस 10, 45 माइनस 25, 96 minus 45. Are you sure? 51. And 118 minus 96. Yes, yes, can see. हाँ, अपलोड कर दिया ना वो तूने, बस। कितना? 118 minus 96. 18 plus 4, 22, correct. And you got all the frequencies. कैसे किया तुमने? तुमने कंजिक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते गए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, सब्ट्रैक्ट करते करते लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, उससे अच्छा सबसे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज लिख दो, फिर 10 माइनस 0 10, 25 माइनस 10 15, 45 माइनस 25 20, ऐसे करते करते नीचे लिख सकते हो तुम। सो दिस इज वन टेक्निक, नोट इट डाउन। मैंने क्लास इंटरवल भी लिख दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और बाजू में फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर इट। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी। उससे पहले मैंने बताया फ्रीक्वेंसी टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझा? अभी तक जो भी समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? ओके, कूल। एक बार चेक कर लेते हैं। यही है, देखो, परफेक्ट। फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। मेरा थोड़ा मूड है और करने का काम, बिकॉज हम लोग काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, सो एंड देयर आर 5 पार्ट्स। यस, हाँ, कैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो दोनों कंप्यूटर जो घर का है उसका मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों खराब हो गया, सो अभी मैं नया कंप्यूटर। अच्छा अच्छा, ओके। सारे ही बाकी है, सारे ही बाकी है। चार्ज करना है ना? ठीक है, मैं कर दूंगा। मतलब मदरबोर्ड या प्रोसेसर? प्रोसेसर इंटेल का है, एक में i3 है, एक में i5 है। आई नो, बट इट्स एक्सपेंसिव मैन, और अब मुझे बनाना है नया पीसी। मैं हमेशा ही बिल्ड करता हूँ, असेंबल ना। हाँ, मैं हमेशा ही असेंबल ही करता हूँ, लैमिंगटन रोड जाके, सब मुझे पता है ये सब। ठीक है, तू जब ये सब पढ़ने लगा ना तब मैं कर रहा था ये सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर वन मोर टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक। यहां पे हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, विल कंप्लीट दैट चैप्टर, इसलिए ये टॉपिक आज करना जरूरी है। ठीक है,
इसके बाद जो चैप्टर मतलब मीन एंड मीडियन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो टुडे वी हैव टू डू दिस बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. देखो बार ग्राफ हम सबको पता है. कैन यू इमेजिन व्हाट अ बार ग्राफ लुक्स लाइक? I can see your hands moving and I don't understand shit. Okay, so I'll draw it for you and you tell me whether it is correct or not. These are your two axes. Sorry, two types of bar graph. कौन सी दुनिया में जी रहा भाई? Oops, sorry. ये क्या हो गया भाई? मैग्नीफायर ऑफ हो गया. So this thing you might have seen in class 8th. देखा है क्या ऐसा कुछ? ऐसा एक ग्राफ, इसको बोलते हैं बार ग्राफ. यहाँ पे अलग अलग ऐसे हाइट के टावर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं. ठीक है, इसको हम शेड करते हैं. कुछ बच्चे इसमें डिज़ाइन बनाते हैं, स्माइली बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. कुछ लोग इसको कलर भी करते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इनके बीच में स्पेसिंग्स कितनी है, इनकी विड्थ कितनी रखनी है, ये सब इम्पॉर्टेंट है. कैन यू टेल मी यहाँ पे हम क्या लिखते थे? That's the lamest answer you've given me. नंबर. अबे नंबर ही लिखते हैं ऑफ कोर्स, कुछ और भी लिख सकते हैं. दिस इज वाई, दिस इज एक्स. यहाँ पे हम एक्स पे क्या लिखते थे? किसी को याद है यार? ऑनलाइन सब भांग खा के सो गए क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है. अरे बोलो यार. एक्सिस में क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल? नो 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 नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्लास इंटरवल तो तुमने अभी पढ़ा है. 8th में ये जब पढ़ते थे तब यहाँ पे क्या लिखते थे? यहाँ पे हम लोग लिखते थे ऑब्जर्वेशंस. क्या लिखते थे? ऑब्जर्वेशंस. और यहाँ पे हम लिखते थे फ्रीक्वेंसी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारे क्लासरूम में देर आर 25 चिल्ड्रन एंड योर स्कूल इज ऑर्डरिंग फॉर स्पोर्ट शूज फॉर ईच ऑफ देम. तो वो लोग साइजेस लेंगे. तो हंस रहे हो. अबे कैसा आदमी है तू? स्कूल अच्छी है तुम्हारी यार, कर सकती है ऐसा. अरे विश करो यार, क्रिसमस आ रहा है. अच्छा ठीक है, इतना भी बुरा नहीं यार. ठीक है चलो, विश करो कि तुम ऐसे स्कूल में होते जहां पे स्कूल तुम्हें नाइकी का स्पोर्ट शूज देता. ठीक है, नाइकी का वो भी. ठीक है, हाँ वही बोल रहा हूँ. तुम इमेजिन करो क्रिसमस आ रहा है, एनी विश कैन कम ट्रू. ठीक है, तो स्पोर्ट्स शूज देने के लिए वो लोग क्या करेंगे? सबकी शू साइजेस को नोट कर लेंगे. अब शू साइजेस, तुम क्लास 9th के बच्चे हो तो मिनिमम शू साइजेस हो सकती है 6 एंड मैक्सिमम हो सकती है 9 या 10. ठीक है, तो कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे? 6, 7, 8, 9 एंड और एक होगा 10. तो what is this 6, 7, 8, 9, 10? They are the observations. Shoe sizes are the observation. But did you notice one thing? They are all different from one another. They are not related to one another. So this is what kind of group, what kind of frequency distribution table? Ungrouped. अबे क्या बार ग्राफ? ये अनग्रुप्ड वाला है. अनग्रुप मतलब इन दोनों में कोई, इन सारों में कोई रिलेशन नहीं है. They are all different shoe sizes. They are not related with each of any of them, any of the other. ठीक है, और यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? F फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज शू साइजेस. तो तुम्हें पता चलेगा किसके सबसे ज्यादा कौन से साइज के शूज
है तुम्हारे क्लास में. सो अनग्रुप डेटा जब भी होता है ना, यू रिप्रेजेंट इट विथ अ बार ग्राफ. You represent it with a bar graph. But when it is a group data जहां पे class intervals होते हैं, then you draw a histogram. और histogram कैसा अलग दिखता है इससे? histogram में क्या अलग होता है इससे? कितना गंदा बना रहा हूँ. Just imagine this, man. क्या बोल रहे हो? कौन एक साथ रहता है यार? The bars are together. So basically they look like this. है ना? They look like this. कोई गैप नहीं है बीच में. तो ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. दे लुक लाइक दिस. तो ये है तुम्हारा बार ग्राफ, ये है तुम्हारा हिस्टोग्राम. ये इसको ही समझना है, मैं उसको ड्रॉ करना है. अब कुछ भी तुम्हारे पास ग्राफ वाफ तो होंगे नहीं अभी, ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ भी ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन होमवर्क में तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो वी विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. बट बिफोर शोइंग यू द सोल्यूशन, आई एम गोइंग टू आस्क यू कि इसमें कौन से टाइप का ग्राफ होगा. ठीक है? सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 9th क्लास in the school during the academic year of 2012-13 to 2016-17. तो 9th क्लास में हर एक ईयर में इतने स्टूडेंट्स थे. रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा बाय अ बार ग्राफ. बोल ही दिया है बार ग्राफ. इसमें हिस्टोग्राम भी बन सकता है. कैन यू टेल मी व्हाई? द years are continuous. The years are continuous, so you can very well make a histogram. But since they have said bar graph, what we will do? We will just keep a gap between each of the bar, and it will look like this. Now this is how your graph page looks like. ठीक है? ग्राफ पेज कुछ ऐसा ही दिखता है. Make sure that you leave a gap of one box from zero if your observations are not starting from zero. यहां पे observation किससे शुरू हो रहा है? 2012 2013. That's not zero, right? So you leave a gap here. कितना गैप लेना है? एक बॉक्स का. अच्छा, फिर बार बनाया. बार की विड्थ कितनी लेनी है? 1 बॉक्स. जितना गैप लोगे उतनी ही बार की विड्थ लेना. बॉक्स समझ में आता है? ग्राफ देखा हुआ है? हाँ. अच्छा, बाद में क्या है? Then it's better that you take gap also of 2 blocks, because your figure should look symmetrical. Your graph should look symmetrical. Otherwise क्या होगा? गैप छोटे दिखेंगे, विड्थ ज्यादा दिखेगी, या बार पतले दिखेंगे, गैप बड़ा दिखेगा. ऐसा मत करना. या तो एक ब्लॉक का विड्थ का गैप और एक ब्लॉक विड्थ का बार, वैसे रखोगे तो भी चलेगा. इट विल लुक लाइक दिस. यहां पे ये y एक्सिस है, यहां पे नंबर्स तुम्हें मार्क करने पड़ेंगे, और उसके लिए तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा स्केल सेंस. सो स्केल क्या होता है? 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो पता है. यहां पे सेंटीमीटर में स्टूडेंट थोड़ी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ईयर्स है. ठीक है? तो कैसे लिखना है? यहां पे कैसे लिखा है मैं तुम्हें बताता हूं. ठीक है? ऑन x axis scale, 1 centimeter is equal to, see what is 1 centimeter? This one block, it is equal to 1 year, 1 academic year. देखो ना, 2012 to 13 1 academic year है ना ये. So 1 centimeter is equal to 1 year. On y axis 1 centimeter is equal to 25 students. 25 students. This must be included over here in this corner, on the top right corner of your graph page. ठीक है? स्केल समझ में आया? बार ग्राफ समझ में आया कैसे होता है? I think you can draw it. In a particular section of class, एक मिनट.
In a particular section of class 9th, 40 students were asked about the months of their births and following graph was prepared. बहुत इजी है ग्राफ, मंथ्स ऑफ बर्थ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? देख के बताओ फटाक से. अक्टूबर में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए थे? 4 इज द करेक्ट, बिकॉज हियर इफ यू सी 4, उसकी ही लाइन में ये अक्टूबर आता है. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फेब्रुआरी में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं? 4. And in which month were the maximum number of students born? August. Easy to read bar graph, very easy. ये भी वैसा ही है. I'll directly go ahead. The result of pass percentage of class 10th and 12th in CBSE examination for 5 years are given in the following table. Draw bar graph so as to represent the above data. So you have to make a double bar graph. बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम नहीं है. मतलब ये क्लास 10th और क्लास 12th उनके जो बार्स होंगे दे विल बी एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब उन पे गैप नहीं होगा, लेकिन दे विल बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 2005-2006. फिर 2006-2007 का अलग, उसमें भी डबल ग्राफ, फिर इसका अलग, इसका अलग. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक लाइक? इट लुक लाइक दिस. सही है. नीचे ऑब्जर्वेशंस आ गए सारे, सब में डबल है. ये कलर्स अलग अलग दिए हैं उन्होंने. आई डोंट नो व्हाट आर द कलर्स, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा. सो एक को डार्क रखा है, एक को लाइट रखा है, एक को शेडेड रखो, एक को अनशेडेड रखो. दैट यू कैन डू. सो यू कैन ड्रॉ डबल बार ग्राफ वेरी वेल. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हिस्टोग्राम बिकॉज उसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं किंक. यू नो किंक? पता है किसी को किंक? नो वन नोस किंक. ऑनलाइन किसी को पता है किंक? किसी को नहीं पता. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. Now we come across histogram. I would like to ask all of you that what will we do here? क्या करेंगे इसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए? सबसे पहले we will select a scale. We'll draw x-axis and y-axis, and on x-axis we will put our क्लास इंटरवल्स. क्लास इंटरवल कौन सी एक्सिस पे डालेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे डू यू सी द मार्क्स एंड द गैप 10 to 20, 20 to 30. So what you will write? Scale on x axis 1 centimeter is equal to 10 marks. So 0, 10, 20, 30, 40, 50 continuous you will write. Why continuous? Because you have to draw histogram. No gaps in between. These are grouped frequency distribution table. You cannot have gaps between the bars. So 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 up to 70. And on y-axis you will write frequency, that is number of students. 5 students will be very less. जीरो टू 10 नहीं होगा. 0 to 10 वाला खाली रहेगा, उसके बाद सब कंटिन्यू होंगे. नो प्रॉब्लम, एक खाली रह सकता है. अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में थोड़ा स्केल में इश्यू है. कैन एनीबडी सजेस्ट अ बेटर स्केल? 1 centimeter is equal to how many students should I take? Can I take 2 students? मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेके 18 तक. Can I take it like that? So I can find 15 students ना. 15 किसके बीच में होगा? 14 और 16 के बीच में. सो एक बॉक्स होगा जिसमें नीचे 14 है, ऊपर 15 है, उसके बीच वाली लाइन जो होती है ना, दैट विल बी 15. यू कैन इजीली फाइंड आउट इन ग्राफ. ठीक है, सी हाउ इट लुक लाइक. इट लुक लाइक दिस. एग्जैक्टली जो मैंने बोला वैसे ही लिया है वो लोग ने. एंड सी वेयर इज 15. 15 इज बिटवीन 14 and 16. If you see here
सो एवरीथिंग कैन बी प्लॉटेड. यहाँ पे स्केल लिख दो, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो. लुक्स लाइक अ प्रॉपर हिस्टोग्राम. ये मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना मत भूलना. एक्स वाई प्रॉपर. ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा. यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, हिस्टोग्राम ही बनाना है. कैन यू टेल मी ऑन वाई एक्सिस व्हाट विल बी द स्केल? Number of literate males in sorry 100, 200, 300. 100, 200, 300 you can reach easily. And how you'll plot 980? Between 900 and 1000. Yes, the eighth line between 900 and 1000 will be 980. 100 का स्केल सही है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मेल्स. सो 0, 100, 200, 300 अप टू 1000. तुम्हारा जो पेज होता है ना, नॉर्मल पेज, उस पर कितने बॉक्स होते हैं पता है? वर्टिकली 21 बॉक्स होते हैं. यहाँ तो 10 बॉक्स में तुम्हारा काम हो जाएगा. सो हाफ द पेज में ग्राफ रेडी हो जाएगा एंड इट विल लुक लाइक दिस. दे हैव आल्सो टेकन 100. सी वेयर दे हैव टेकन 980. यू सी हियर जस्ट बिलो 1000. 2 लाइन्स बिलो 1000 तुम्हारे बुक में आ जाएगा. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक द हिस्टोग्राम. यस, इसको भी हिस्टोग्राम बनाना है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम होगा. इफ यू सी दिस, oops, if you see this carefully, what will be my scale on x-axis? On x-axis 1 centimeter is equal to 5 kg, right? On y-axis what will be my scale? 2 या 1 भी ले सकते हो, क्योंकि 12 है मैक्सिमम, तो 12 बॉक्स में तो कंप्लीट हो जाएगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पर्सन भी ले सकते हो. ठीक है. अच्छा, एक्स एक्सिस पे देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, एंड यू विल हैव टू सजेस्ट मी समथिंग. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. क्या हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 40, 45, 50, 55, 55, 50 से तो मुझे शुरू करना है, और यहां तक की स्पेस तो वेस्ट हो गई. तो ऐसा जब होता है, मतलब तुम्हारा एक्स एक्सिस पे जब तुम्हारा जो क्लास इंटरवल है वो 0 से शुरू नहीं होता. रिमेंबर, whenever your class intervals does not start from 0 on x-axis, you use a kink. क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? किंक. दिस इज द किंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. So what I'm going to do is, over here I will draw a kink like this. This is a kink. Kink को हम ब्रेक भी बोलते हैं. किंक का फायदा क्या है? सपोज ये 0 है ना, तो 0 से लेके 50 तक का जो स्पेस था मैंने रिड्यूस करके सीधा यहां से मैं स्टार्ट कर दूंगा. So it's like I'm squeezing all those numbers with the help of the kink. So kink बनाया, फिर सीधा 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. आ गया पूरा, और कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं हुई. So you can use kink in this way. Whenever your number does not start from 0, you can use a kink. You can even use a kink on y-axis. अब यहां पे गैप बिटवीन द वेट इज जस्ट 5. सो 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg. ठीक है, बट वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 5. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 50. सो हियर यू कैन यूज अ किंक. क्या हो गया? तेरे बुक में नहीं है किंक? है ना, होगा ही ना. ये देखो, किंक यूज किया.
बट किंक बनाने का तरीका हर एक बुक में अलग अलग होता है, किसी में ऐसे जिगजैग बनाते हैं, किसी में ऐसे जेड बना देते हैं, जो तुम्हें बोले स्कूल में तुम ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट रॉन्ग. एंड यू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम जस्ट लाइक एज यूजुअल. हिस्टोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निक याद रखनी बड़ी बात है. ओके और एक चीज, नाउ सपोज योर क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर ऑफ इंक्लूसिव टाइप, तब क्या करोगे तुम? तब तुम क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करोगे फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव. मैंने सिखाया कैसे कन्वर्ट करना है. 0.5 को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में ऐड करना है, न्यू क्लास इंटरवल बनाना है और उनको प्लॉट करना है. लेकिन whenever you convert your class intervals from inclusive to exclusive type, you must use a kink. kink use करना ही पड़ेगा तुम्हें. जैसे कि यहां पे 35 to 39, 40 to 44. Can you tell me what will be the new class interval so I can write it here itself? (34.5 to 39.5), 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5, and so on. No big deal, but you have to start from which number? Can you tell me what will be your scale on x-axis? x-axis पे scale क्या होगा ये देख के बता सकते हो? What is the class width? Class width कितनी है? 5. तो scale कितना होगा? 1 centimeter is equal to 5 units. But if you write 0, 5, 10, 15, 34.5 is very difficult to get. So what you do? You draw a kink. So 0 के बाद kink डाल के सीधा 34.5 से शुरू कर सकते हो तुम. Like, see, this is, they have converted, and like this. Kink डालो, सीधा शुरू कर दो. So whenever you convert your class intervals from inclusive to exclusive type, and you have to draw a histogram, don't forget to put a kink on x-axis. Y-axis is not a troubling thing. Y-axis हो जाता है adjust. X-axis में problem होती है, मतलब class intervals में. ठीक है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है. Unequal width वाले class intervals है. That's not even there. अब तुम्हें बोला है कि एक हिस्टोग्राम, लास्ट है, डोंट वरी. फर्स्ट मर रहे हो सब लोग. अब बहुत हो गया, बंद करो. ठीक है, बंद कर रहे हैं हम लोग, 2 मिनट दे दो. यहां पे बोला है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 55 स्टूडेंट्स इन क्लास 9. बट यहां पे क्या दिया है? मार्क्स मतलब मिड पॉइंट दिए है. हाउ टू गेट क्लास इंटरवल्स फ्रॉम द मिड पॉइंट्स? आई हैव शोन यू दैट. क्लास मार्क्स है ये, उससे क्लास इंटरवल बनाने. याद है किसी को? याद है बोला तो अंदर देख रहा है तू. दिमाग पे जोर डालना थोड़ा. दिस इज हाउ यू डू. दिमाग पे जोर डालना ना. फर्स्ट subtract 2 consecutive class marks, any 2. subtract कितना आएगा? 10. ठीक है. now divide 10 by 2. now add 5 and subtract 5 from the midpoint. what do you get? 145 to 155, 155 to 165 to 175 to, no problem. But while drawing the histogram, what one thing you will take care of? क्या टेक केयर करोगे तुम? किंक बनाओगे. ठीक है. यहां पे क्लास विड्थ कितनी आई? 10 की. और हर एक कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना है? हाँ. तो जब तुम इससे हिस्टोग्राम बनाओगे, तुम किंक पहले बनाओगे, बाद में हिस्टोग्राम बनाओगे. देखो सेम 145 to 155 आया, किंक बनाया, हो गया.
And the last thing, do you have frequency polygon? Just check in your book. You have? Bad luck. Last thing, और एक चीज पढ़नी पड़े, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. भार्गव, इसमें किंक बनाएंगे कि नहीं? ये डेटा में बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होता. तो किंक बना के, अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट इन दिस डेटा? 20. सो किंक बना के यू कैन प्लॉट एवरीथिंग. ठीक है, बट देर इज वन कैच हियर. द कैच इज you have to draw histogram and frequency polygon together. ठीक है, हिस्टोग्राम तो तुम बना लोगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाओगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए यू हैव टू ऐड वन कॉलम हियर. इसको बोलते हैं क्लास मार्क. इसके मिड में क्या आता है? इसके मिड में, वेरी गुड, फटाफट बताओ. ठीक है, अब तुम क्या करोगे पता है? ये क्लास मार्क और ये फ्रीक्वेंसी, उसको तुम प्लॉट करोगे पॉइंट से. किससे? पॉइंट से. और वो पॉइंट को ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से, तो तुम्हें एक पॉलीगॉन जैसा मिलेगा. उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सी, किंक बनाया. ठीक है, यहां पे ये पहला वाला प्लॉट किया. पहला वाला मिड पॉइंट क्या था? 450. 450 और 2 को मार्क किया. देखो 450 इनके एग्जैक्टली मिडल में, और यहां पे 2. ये पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा. ये सारे क्लास मार्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स है. इनको ज्वाइन कर दिया. अच्छा, इसको ये जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट दिख रहा है. डू यू सी दिस पॉइंट? दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट. इसकी जो टांगे है ना, टांगे, इसको जमीन पे उतारना है. ऐसे हवा में नहीं तैरना चाहिए. I'll tell you, I'll show you what is that. मैं वही उस पे ही आ रहा हूं. इसको जमीन पे उतारना है. तो इससे पहले जो क्लास इंटरवल है ना, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है. ये कौन सा क्लास इंटरवल है? 440 to 460. इससे पहले कौन होगा बताओ? एग्जैक्टली 422. और इसके मिडल में कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, तो उसकी जो टांग है ना, वो वहां पे जाएगी, इसके पहले वाले क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पे. और इसकी टांग यहाँ पे जाएगी. ये 580 to 600 है, 600 to 620 के मिडल में क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे उतर जाएगा ये, और इसको यहाँ पे उतार दो, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. बट दिस इज हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. इफ यू डोंट ड्रॉ हिस्टोग्राम, you will just get those lines like this zigzag. मैं वो भी एक दिखाता हूं तुमको. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. देखो आ गया. पहले क्या करोगे तुम? इसमें क्लास मार्क बनाओगे. क्या है क्लास मार्क? क्या है? फर्स्ट इंटरवल की, सेकंड की, समझ गया? और उसको तुम्हें किससे ज्वाइन करना है? फ्रीक्वेंसी से. और ये देखो ऐसे लगेगा. अरे ये बंद किया गया इसने? नहीं, चालू है. ये क्या हो गया यार? हाँ, नहीं, इंटरनेट है. देयर इज इंटरनेट, देयर इज वेरी वेल इंटरनेट. ये देखो लोड हो रहा है. एनीवेज, हम बनाते हैं ना इसको, रफ में बनाते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. तो मैंने क्या बोला था तुम्हें? इसके साइड में क्या लिखना है? क्लास मार्क. क्या है? 1, 3, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, सो यहां पे मैं लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5. कहां तक आएगा? 17 तक ना.
6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ठीक है, y एक्सिस पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 1 के साथ कौन है? 2। तो 1 ऑन y एक्सिस एंड 2, सॉरी 1 ऑन x एक्सिस एंड 2 ऑन y एक्सिस। ये पहला पॉइंट आ गया। फिर 3,4, राइट? 3 लेंगे और उसके साथ किसको लेंगे? 4। सो 3 एंड 4 ओवर हियर। फिर 5 एंड 6, 5 एंड 6 यहां पे। फिर 7 एंड 8 यहां पे। फिर 9 एंड 9 यहां पे। फिर 11 एंड 6 यहां पे। तो तुम समझ गए कैसे प्लॉट करना है। अब इसको क्या करना है? इसको 0 के साथ ज्वाइन कर देना। फिर यहां पे ऊपर, फिर यहां पे, फिर यहां पे ऊपर, फिर यहां पे, फिर नीचे। फिर और ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें। करते करते इसको नीचे उतार देना यहां पे। आई डिड नॉट मेक मैन, समझने वाली बात है। एक मिनट, पहला क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 2। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे -1 और यहां पे हम लोग लिखेंगे -2। तो इससे पहले वाला क्लास इंटरवल है 0 to -2 और उसका मिड पॉइंट क्या है? हाँ, तो एक चीज मैंने यहां पे गलत की है, दैट इज मैंने 0 से उसको ज्वाइन कर दिया है। तो मैं इसको हटाऊंगा ये लाइन को और मैं इसको -1 के साथ ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, क्योंकि उसके प्रीवियस क्लास के मिड पॉइंट के साथ उसको ज्वाइन करना है, उतारना है नीचे। और ये तुम्हारा ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बने। दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, ऑफ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसका फिगर आया, अभी आ रहा है, लोड हो रहा है, बट नहीं आया। ठीक है, सो दैट वाज इट, ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड यू। ठीक है, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस एट होम। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय।